Hello guys, welcome back, and in this video we'll be solving this question called as kth largest element in a string. This is problem number 703 on LeetCode, and again it's a very popular interview question. So what we have a class called as kth largest, and we have to implement a constructor kth largest which takes the parameter k and nums array, and it has another function which takes the value that needs to be added to it. Okay. Even before that, let's see this. Okay, so I'm gonna just not gonna read this big description because it will be wasting a lot of time. We're gonna go through this example very quickly. ठीक है, तो इस example के थ्रू अपन समझते हैं कि अपन को क्या ये कह रहा है. ठीक है, तो what we have here is, for example, मेरे को पहले दे रखा है कि मेरा कंस्ट्रक्टर वो कॉल करेगा इस वैल्यूज़ के साथ. ठीक है, इन वैल्यूज़ के साथ क्रिएट करेगा. The value is k is 3 and the array is 4, 5, 8 and 2. Okay, so this is the first one. Then what it says is कि every time the next thing is it is calling add with value 3. ठीक है, so let's say ये हमारे पास था 4, 5, 8, 2 and what we did is we did some manipulation और इस 2 के बाद basically यहाँ पे 3 भी add हो गया. Okay, now what we have to return, like after calling this, right, after calling add with 3, we have to return the third largest element from here. So the third largest element will be like 2. If I write like this, 2, 3, 4, 5 and 8, the third largest, this is the first largest, second largest and third largest. तो इस केस में मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए था, इस केस में आउटपुट इसका 4 आना चाहिए था. Okay, now let's say I added again a value 5 to it. ठीक है, तो अब मैंने इसमें 5 ऐड किया, तो मेरे पास क्या था 4, 5, 8, 2, 3 एंड अब मैंने इसमें वापस से 5 ऐड किया है. तो अगेन आई हैव टू रिटर्न द के, राइट, के इज द थर्ड लार्जेस्ट. इस केस में अगर मैं इसको वापस से सॉर्टेड फॉर्म में लिखो तो इट विल बी 2, 3, 4, 5, 5 एंड 8, राइट. इस केस में थर्ड लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा. इस केस में मेरा आउटपुट आ रहा है 5. Similarly, you can go ahead and try for these examples also and see whether your understanding of the problem is matching with the output or not and you are able to get it or not. ठीक है, तो हमें क्या इम्प्लीमेंट करना है, हमें बेसिकली ये कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना है, राइट, which takes the parameter k and a nums array, right, and then we anytime I add a value, right, maybe इस nums के साथ मैंने कोई data structure create किया होगा, right, and anytime I add a value to the data structure, right, what should have happened is कि I should return from here the kth largest number from that structure. Okay, since we have already studied a lot about heap and stuff and we know whenever the kth largest thing comes up, it is the min heap that we have to स्टार्ट थिंकिंग अबाउट एंड लेट्स सी कि क्या इसमें मिन हीप को यूज़ कर सकते हैं. पर एक्चुअली सीधा यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एरे क्या है, राइट, हमारे पास एरे है 4, 5, 8 एंड 2, राइट. तो जब भी के लार्जेस्ट की बात आती है या फिर केथ लार्जेस्ट की बात आती है तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली एक मिन हीप बना लेते हैं, राइट, एक मिन हीप बना लेते हैं ऑफ साइज के, राइट. इवेंचुअली क्या होता है, ये मिन हीप बेसिकली इट विल बी स्टोरिंग द के लार्जेस्ट एलिमेंट्स, राइट. And if I have to get the kth largest from here, then what will happen? So min heap क्या स्टोर करेगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके पास इतने नंबर्स है, राइट, है ना, और मान लो कि इसको अपन लेट्स से इट इज़ इन सॉर्टेड फॉर्मेट समथिंग. ठीक है, नाउ min heap क्या करता है, min heap बेसिकली करता है वो बेसिकली इनके के लार्जेस्ट नंबर्स को स्टोर कर लेता है, राइट. जब भी हमने वो मैनिपुलेशन देखा तो min heap के लार्जेस्ट एलिमेंट को स्टोर कर लेता. अब क्या होगा, हमें min heap का क्या पता है, हमें min heap का ये पता है कि हम ये श्योरिटी कि इस min heap पे जो सबसे आगे वाला जो एलिमेंट होगा दैट विल बी द मिनिमम एलिमेंट. ठीक है, इसके बाद क्या बचेंगे, इसके बाद बचेंगे k-1 एलिमेंट जो बेसिकली इस मिनिमम से ग्रेटर होंगे, है ना, एंड दिस k-1 बेसिकली द k-1 लार्जेस्ट एलिमेंट्स. तो व्हाट इट मीन्स इज बेसिकली कि भैया जो ये वाला एलिमेंट हो गया मिनिमम जो मिन हीप में, दिस विल बी द kth लार्जेस्ट इंटीजर, राइट. दिस वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अ लॉट इन आवर थ्योरी पार्ट, सो नॉट गोना गो मच डेप्थ इनटू इट, बट लेट्स नाउ स्टार्ट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, तो हमें क्या देना था, अगेन लेट्स स्टार्ट विद दिस. 3 इज द की दैट्स गिवन टू अस, right, k is 3 and we have 4, 5, 8 and 2. ठीक है, और हम क्या करेंगे, एक मिन हीप बना लेते हैं. so let me create a min heap here. तो जब कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो रहा था, हमारा कंस्ट्रक्टर इस पैरामीटर के साथ कॉल होता था, राइट, k3 k के साथ और नम्स एरे के साथ. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस एरे का यूज़ करके हम बेसिकली अपना मिन हीप बना लेंगे. एंड मिन हीप हमें कितने साइज़ का बनाना है, हमें मिन हीप बनाना है k साइज़ का. ठीक है, तो k यहाँ पे क्या है, k यहाँ पे 3. सबसे पहली वैल्यू 4 आई तो 4 अपन ने बस यहाँ पे ऐड कर दी, फाइन. फिर यहाँ पे 5 आई तो यहाँ पे 5 अपन ने ऐड कर दी. ये शिफ्ट अप होगा क्या, शिफ्ट अप नहीं होगा क्योंकि भैया चाइल्ड जो है अपने पेरेंट्स से छोटा ही. फिर अपन यहाँ पे आए तो अपन ने यहाँ पे 8 ऐड कर दिया. ठीक है, फिर यहाँ पे अपन 2 तो यहाँ पे अपन ने 2 ऐड कर दी.
नाउ द शिफ्ट अप विल हैपन बिकॉज इस केस में हमारा मिन हीप का रूल वायलेट हो रहा है. मिन हीप का रूल क्या होता है आगे, पेरेंट वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू देयर चाइल्ड वैल्यूज, राइट, चाइल्ड वैल्यूज लेफ्ट राइट. उस केस में पेरेंट वैल्यू हमारे चाइल्ड के वैल्यू से छोटा होना चाहिए. इसमें पेरेंट का वैल्यू बेसिकली चाइल्ड की वैल्यू से बड़ा है, मिन हीप का रूल वायलेट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस बंदे को शिफ्ट अप कर देंगे. तो ऊपर जाएगा तो इससे स्वैप कर लेगा, दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 2. अगेन दिस विल चेक क्या भैया अभी मैं वो ऊपर जा सकता हूँ क्या, बोलेगा हाँ भाई पेरेंट तो अभी बड़ा है, तो इसको भी हम लोग स्वैप कर देंगे, तो दिस विल बिकम 2 एंड दिस विल बिकम 4. ओके, सो दिस इज व्हाट आवर हीप्स लुक लाइक राइट नाउ. एंड बिफोर दैट ऑल्सो हमें क्या करना था, हमें बस एक के साइज का ही तो हीप चाहिए था, तो हम लोग को कोई इतना एक्स्ट्रा भी करने की ज़रूरत नहीं थी, राइट. वी एडेड दिस वैल्यू, ये हमने 2 को मान लो यहाँ पे ऐड कर दिया. नाउ व्हाट वी कैन से कि हाँ भैया चलो हमारा हीप का साइज जो है के से जस्ट बड़ा हो गया है, राइट, मिन हीप का साइज यानी कि इसके से 4 हो गया है, तो इसको 3 में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं. और कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, इस केस में 2 वाला रिमूव होगा. लेकिन 2 को रिमूव कैसे करते हैं, किसी भी हीप में एलिमेंट को डिलीट कैसे करते हैं, वी टेक द लास्ट एलिमेंट, राइट, वी टेक द लास्ट एलिमेंट and we paste it here, ठीक है, we paste it here and then we remove this element, right. इस एलिमेंट को हम क्रॉस मार देते हैं, ठीक है. तो अब इससे क्या हुआ, 2 हमारा गायब हो गया. अब हमने ये एलिमेंट ना, इस पे हम बोलते हैं कि भैया अब तुम पे अब हीपीफाई चला देंगे. हीपीफाई चला देंगे मतलब इस एलिमेंट पर हम देखेंगे कि इसके कोई भी जो चाइल्ड है, राइट, कोई भी चाइल्ड है उसमें से अगर इसका कोई छोटा है और कौन सा सबसे ज़्यादा छोटा है उसके साथ इसको स्वैप कर दो. तो इस केस में 4 इससे छोटा है, यस, तो इसको हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 4. So after calling this constructor with these values, we will have some heap like this, right? So ऊपर क्या है हमारे पास, 4 है, and then we have 5 here, and then we have 8 here, right? So after calling constructor with this, what we did, like ये nums आ रहा था और एक ये था, इसके साथ हमने ना ये एक heap वाला हमारे क्लास में बना के रखी 4, 5, 8 करके, क्योंकि हमारा k 3 था तो हमने min heap बनाया है, मिनी बनाया ऑफ साइज की इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ लेट्स सी कि हमें क्या क्या कॉल्स करनी थी, ठीक है. 3 के साथ हमें ऐड कॉल करना है जिसका आउटपुट आ रहा है 4. लेट्स सी इफ वी आर गेटिंग दैट और नॉट, ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, वी आर एडिंग 3 टू इट एंड लेट्स सी कि उसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है. तो अभी क्या है, इसका साइज है 3, है ना, तो अपन ने ऐड करना है 3, तो अपन ने क्या करा, चलो इसमें 3 अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है, इसमें 3 अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है. 3 इसमें एंड में चला जाएगा, मिन हीप है, रूल वायलेट हो रहा है भैया, तो ये क्या करेगा, शिफ्ट अप करेगा, है ना. शिफ्ट अप कैसे करेगा, ये देखिए अपने पेरेंट्स से, भैया मैं आपसे छोटा हूँ तो आप पीछे आ जाइए, तो ये बोलेगा ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ, 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ठीक है. 3 बोलेगा पेरेंट्स से, भैया मैं आपसे छोटा हूँ तो आप नीचे आ जाइए, तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा, ठीक है. तो होगा क्या, अब हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ये बस वही कट गया था. सो 3, 4 एंड 5 एंड 8, दिस इज वॉट आवर हीप लुक्स लाइक, ठीक है. अब है ना, इसका हीप का साइज़ क्या हो गया, अब हीप का साइज़ k से बड़ा हो गया, 3 से बड़ा हो गया. अब क्या करो, इसको डिलीट कर दो, 3 को डिलीट कर दिया, 3 को डिलीट कर दिया, तो क्या होगा, 3 को डिलीट कैसे करते हैं, लास्ट वाली वैल्यू को उठा के यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है. और इसको फिर क्या कहते हैं, और फिर इसको हम रिमूव कर देते हैं, और फिर इस पर हम हीपीफाई रन करते हैं. तो हीपीफाई कैसे रन करेंगे, इस पर बोलेंगे कि यार मेरे चाइल्ड में कोई में से छोटा है और उसमें भी से नहीं सबसे छोटा कौन है, तो 4 छोटा इससे, 8 छोटा नहीं है, 3 दोनों को क्या करो, स्वैप कर दो, तो ये 4 ऊपर आ गया, 5 यहाँ पे आ गया. आफ्टर दिस आर हीप लुक्स लाइक दिस, 4, 5 एंड 8, ठीक है. अब ठीक है, ये हमारे हीप के ऑपरेशंस हो गए. अब इसके बाद हमने पूछा भैया आपके पास मिनिमम कौन सा है, क्योंकि मिनिमम ही तो हमारा बता रहा था kth लार्जेस्ट एलिमेंट मिन हीप का, तो इस केस में बता देगा ऊपर मेरे सबसे मिनिमम मेरे पास 4 है, तो इस केस में इसका 4 आ जाएगा. इसी तरीके से आप बाकी चीज़ों के लिए भी कर सकते. चलो अब इसको पहले कोड कर लेता, फिर बाकी एक एग्जाम्पल और यहाँ पे ट्राई करेंगे रन करने, ठीक है. तो क्लास में मेरे को एक चाहिए था मिन हीप, तो प्रायोरिटी, लेट मी क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू, तो प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर मिन हीप, ठीक है. और ठीक है अभी तो इतना ही चाहिए, लेट्स सी और कुछ चाहिए होगा तो बाद में क्रिएट कर लेंगे. सो मिन हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू ऑफ टीचर एंड आर कंस्ट्रक्टर, ठीक है. एंड वी गो थ्रू ईच ऑफ आर नंबर इन आर एरे विच इज नम्स, राइट. और हम क्या करते हैं, इसको मिन हीप में बस ऐड करते चले जाते हैं, ठीक है. वी जस्ट ऐड इट इन अ नंबर, ठीक है. तो हमारे पास इनिशियली हीप एम्प्टी थी, लेट्स से हमारे पास ऐसा कोई नंबर थे, राइट. वी हैव समथिंग लाइक दिस 4, 5, 8, 2, 4, 5, 8 एंड 2, और हमारा k था 3, ठीक है. तो अपन ने क्या करा, अपन ने 4 को ऐड कर दिया अपने हीप में, फिर 5 को ऐड कर दिया हीप में, फिर 8 को ऐड कर दिया, अब 2 को ऐड कर दिया. जैसे हमें क्या करना है, मिन हीप के साइज़ का मेंटेन करना है. 2 जैसे अपन ने ऐड किया,
ठीक है। टू जैसे अपन ने ऐड किया, अपने हीप का साइज़ क्या हो गया, के से बढ़ गया। तो अपन ये कह सकते थे कि यार अपने को ज़रूरत नहीं उतनी की, तो अपन क्या करेंगे, जब भी मिन हीप का साइज़ बेसिकली के से बड़ा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मिन हीप से उस बंदे को हटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर वाला काम हो गया। तो जब यहाँ से हम मिन हीप में से मिनिमम एलिमेंट को हटा देंगे तो 2 यहाँ से एलिमिनेट हो चुका हो। सो दिस इज व्हाट वी विल हैव 4 5 8। ठीक है, तो लेट्स से कि वी हैड दिस एंड लेट्स थिंक अबाउट कि अब हमारा ऐड वाला फंक्शन कैसे कॉल होगा। तो ऐड के टाइम हम क्या करेंगे, ठीक है, ऐड के टाइम क्या करेंगे, हम बोलेंगे यार ये हमारा लेट्स से जब हमारी मिन हीप की साइज़ के से छोटी है, ठीक है, तो लेट मी राइट इट। सो इफ मिन हीप डॉट साइज़, अगर ये बेसिकली के से छोटी है तो अपन ने क्या करना है, ठीक है भैया कुछ नहीं, बस इसमें मिन हीप में ये एलिमेंट जो भी आया है उसको ऐड कर दो और ऊपर वाले एलिमेंट को जो भी मिनिमम एलिमेंट है वो हमारा के लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसको बस रिटर्न कर दो। ठीक है, रिमूव नहीं कर रहे है ना, रिमूव नहीं कर रहे क्योंकि हमें के साइज़ का हीप तो रखना ही है हमेशा। तो ये हमारा ये बेस के एक ये केस हो गया। और एक क्या हो सकता था, लेट्स से कि अब हमारा जो हीप का साइज़ होगा या तो वो के बराबर होगा, है ना, के बराबर होगा। तो अपन ने क्या करी, अपन ने बेसिकली उसमें अपनी ये एलिमेंट को ऐड कर दिया। ठीक है, इस वैल्यू को अपन ने ऐड कर, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, अब अपने हीप का साइज़ बेसिकली के से 1 बढ़ गया होगा, है ना, क्योंकि दिस इज लेस देन के, तो के बराबर होगा तब हमने इसको वैल्यू को ऐड किया। ठीक है, तो इसका मतलब कि अब साइज़ होगी इसकी k+1। तो अब क्या करना है, अपन को इसमें से मिनिमम एलिमेंट रिमूव कर देना है क्योंकि वो अपने को नहीं चाहिए, मिनिमम एलिमेंट हमको अब नहीं चाहिए। और फिर जो फाइनली जो भी इसके ऊपर है सबसे टॉप पे उसको बस हम रिटर्न कर दें। सो व्हाट वी डिड हियर, लेट्स क्विकली वॉक थ्रू हियर। सो वी हैड दिस हीप विद अस, राइट, और फिर हमारे पास नया नंबर क्या है, नया नंबर हमारे पास आया 3। ठीक है, तो हीप का साइज़ अभी 3 है ना, तो इसके अंदर तो नहीं जाएगा क्योंकि के बराबर है वो, तो इस केस में आएगा। अपन ने क्या किया, अपन ने इसमें 3 ऐड कर दिया। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। तो अभी इस हीप का साइज़ क्या हो गया, इस हीप का साइज़ हो गया बेसिकली k+1। ठीक है, k+1। और अब अपन को क्या करना है, अब इसमें जो भी मिनिमम एलिमेंट था, ठीक है, वो तो अपने को नहीं चाहिए, वो अपना थोड़ी के लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, उसको अपन डिलीट कर देंगे। सो आफ्टर डिलीटिंग दिस 3 विल बी गेट डिलीटेड एंड वी विल हैव के एलिमेंट्स इनसाइड दिस। अब जो भी मिनिमम होगा वो हम पीक से रिटर्न करते हैं बस, एंड दिस विल रिटर्न 4 ईयर, है ना। सो लेट्स रन दिस एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स ऑन एंड के। अच्छा, तो के हम लोगों को स्टोर करके रख सकते हैं कहीं पे, लेट मी राइट इट। सो एंड लेट्स राइट इट के एंड आई विल हैव दिस डॉट के इज इक्वल टू के एंड, और यहाँ पे वो के पकड़ लेगा। ओके, लेट्स रन दिस। ओके, सो इट्स वर्किंग, लेट मी सबमिट दिस। ठीक है, तो ये काम कर रहा है, बढ़िया। लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हो जाएगी, हमने सारे नंबर्स पे चलाया, तो अगर नम्स का लेंथ n है, राइट, सो दिस विल बी एडिंग गेट एवरी टाइम। सो और क्योंकि हम हीप का साइज़ के अराउंड ही मेंटेन कर रहे हैं तो ऐड करने का log के हो जाएगा, है ना। और जब भी पोल करें तो दैट इज ऑल्सो log के, सो log के प्लस log के, सो n log के प्लस n log के, दैट विल बी स्टिल बी n log के ओनली। ओके, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने स्पेस के हिसाब से अपन एक हीप बना रहे हैं जो इसका साइज हमेशा के अराउंड ही रहेगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी के। एंड यूजुअली वेन एवर देर इज अ क्लास नो, यू जनरली राइट इट फॉर द फंक्शंस, राइट, फंक्शंस का आपका कितना टाइम लग रहा है। सो इस केस में टाइम ये लग रहा है और स्पेस ये लग रही है। ऐड करने का जो फंक्शन है इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ नहीं कर रहे, तो दैट विल बी कॉन्स्टेंट। एंड लेट्स टॉक अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बस यार कुछ नहीं कर रहे, बस इसमें बस ऐड कर रहे हैं या फिर रिमूव कर रहे हैं, तो और ऐड और रिमूव इतना होता है, और क्योंकि के साइज़ का हीप है तो ऐड और रिमूव का इट इज़ log k फॉर द हीप। Okay guys, so that is it for this video and I hope you liked it. Let me know in comments if there is something missing and add it to comments as well. See you soon. Bye.